be around, say, data structure algorithms. No, sorry, it will be around DS algo applications on strings and arrays. So strings and arrays में ना frequency counting pattern है, frequency counting method जो भी बोलता है, it works really well. तो थोड़ा सा बात करते हैं frequency counting method है क्या, ठीक है? And I hope मतलब but before talking around that and before we discuss that, I just want to say कि भाई I hope कि मतलब you are all comfortable with Bigo by now. आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आती है, सारी चीजें समझ में आती हैं, ठीक है? इफ नॉट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, एटलीस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और बिगो नोटेशन समझ में आता है। आपको समझ में आता है कि भाई लूप्स का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालेंगे, नेस्टेड लूप्स का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालेंगे, एक लूप के अंदर दूसरा लूप है तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट। यस, आई विल अज्यूम कि मतलब यू आर थॉरो विद ऑल ऑफ दैट, ठीक है ना? तो कूल है। नाउ गाइस, थोड़ा सा आई वांट टॉक अबाउट फ्रीक्वेंसी काउंटिंग पैटर्न एंड मतलब लेट मी स्टार्ट विद अ क्वेश्चन, ठीक है? जस्ट गिव मी अ सेकंड एंड I'll be able to kick off with a question in the first place, ठीक है? So let me tell you the question, ठीक है? And I want you to think of an approach to solve that, ठीक है? The question is कि दो arrays दिए हो, you're given an array A and an array B, ठीक है? दो arrays दिए हुए हैं, each of them contain certain numbers, ठीक है? Certain numbers, it could be 100 numbers, 1,000 numbers, it could be 1 million numbers, ठीक है? And what you have to do is you have to check if array B contains the squares of all the numbers in array A. What I mean to say is that array A could be 2, 7, 9. Yeah, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, काम करते हैं, ठीक है? The array A could be 2, 3 and say 6, ठीक है? Array A हो गया 2, 3 and 6, and array B could be 4, 9, 36. So you have to check whether the array B contains 4, 9 and 36. Do they have to be in same order? No. Okay. The array B could be 36, 4, 9. Do they have to be in does each number have to appear once? No, not necessarily. Okay. The array A could be 2, 2 and 6, which means that I'm counting 2 twice. Array A could be 2, 6, 2 or 2, 2, 6, whatever you want to say. Let's say 2, 6, 2 बोलते हैं. Array A could be 2, 6, 2. मैं फिर से बोल रहा हूँ 2, 6, 2 and उनके स्क्वायर्स क्या होंगे? 4, 36, 4. So the array B has to be say 36, 4, 4 or 4, 4, 36 or 4, 36, 4. Array B can't be 4, 36. Right? 4, 36 means कि भाई यहाँ पे दो ही नंबर्स हैं, ऊपर में तीन नंबर्स हैं, ठीक है? The numbers can repeat and all, everything can happen, ठीक है? So now there are two arrays, simply said, ठीक है? Array A है, array B है, ठीक है? We have to check whether the array B contains the squares of all the numbers in array A, ठीक है? And that's it. It doesn't have to contain any more numbers, which means that it can't contain, say, it can't have 436, 4, 36, 4 and then another number, say 10 या 9. ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? You have to think about a solution to that, ठीक है? कि दो arrays को आप check कैसे करेंगे? How will you put a condition? And then your program has to return true if the second array contains the squares of all the numbers from the first array, and false if मतलब anything does not match up. Think about it. I'm giving 30 seconds.
ठीक है। I hope you have given it a thought. So the first thing that comes to mind is कि भाई loop लगा देंगे, ठीक है? And I'll probably share my screen and we'll try to discuss a solution. To me, I hope you can all see my screen, and we'll discuss a small solution. ठीक है. Sorry. I think you can all see my screen now. ठीक है. तो अपने को क्या करना है? We have got two arrays. A is equal to something something. Let's say 1,3, or say let's say 2,4, 2,6. Let's say this is the array. Yes. This array A. Array B is equal to, let's say, 4, 36, 4, 16, something like this. We have to match. The array B contains all the not. Just write pseudocode. I'll just briefly explain frequency counting pattern. Take it. And what we are going to cover is frequency counting pattern. But on a normal day, what you would do is you would run for loop over A. Take it. And what you would do is कि a pseudocode type पे लिखूंगा, ठीक है आप. And what you would do is कि अपने A के ऊपर loop run करा, ठीक है. And for each element I in A, ठीक है. What you would do is you would find corresponding I to the power 2 in B. This is what you would do. ठीक है. Okay. If and then what you would say is if you are not able to find, then return false. That square for a number, certain number does not exist, right? You close the loop here and you close the loop here again. Take it. Else, if you are able to find the squares of all the numbers, you would return true here. ठीक है. इसमें एक mistake है, एक गड़बड़ है. I will cover that. ठीक है, don't worry. What you would do is कि भाई आप loop करोगे A के ऊपर, ठीक है. फिर हर element के corresponding आप पूरे B को छानोगे, ठीक है. You will scan the entire B for the same, ठीक है. And then you will take a look. Okay, हम B में ये इसका square exist करता है. अगर नहीं exist करता है, then you will return false. Else अगर पूरा लूप चल जाएगा and then आपको रियलाइज होगा कि सब पे एग्जिस्ट करता है, then finally you return true. The catch here is that कि एक छोटा सा catch और है इसमें, which is कि भाई मतलब this will turn out to be true even for this, कि यहाँ पे let's say कि 2 is repeated twice but 2 का स्क्वायर एक ही बार नीचे एग्जिस्ट करता है. So what you will have to do, you will have to find corresponding I square in B and delete it also. delete कैसे करते हैं? array से स्प्लाइस करके डिलीट भी कर दोगे आप, ठीक है. 2 के करस्पॉन्डिंग आपको 4 मिला, आपने 4 को ढूंढा और उसको डिलीट कर दिया, ठीक है. फिर 4 के करस्पॉन्डिंग आपको 16 मिला, आपने 16 को ढूंढा, आपने डिलीट कर दिया. अब 2 के करस्पॉन्डिंग आपको 4 नहीं मिल रहा है, तो हेंस यहाँ से रिटर्न हो जाएगा फॉल्स, और यहाँ यहीं पे प्रोग्राम आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है. अगर एल्स अगर पूरा प्रोग्राम यहाँ से कहीं रिटर्न नहीं होता है,
तो फाइनली आप रिटर्न कर दोगे कि सबका लग रहा है, सबके कॉरस्पॉन्डिंग मिल गया है, ठीक है, कूल है। तो एक सिंपल सा स्ट्रेटजी ये हो सकता है कि भाई अगेन आई जस्ट इस एरो को फिल कर देता हूँ, ठीक है, 4, 16, 36, 4, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये सॉल्यूशन सबको क्लियर है क्या? सबको समझ में आ रहा है कि बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है? द मोस्ट ऑब्वियस सॉल्यूशन इज दिस, व्हाट इज रिटन ओवर in front of you on your screen right now. एक बार देख लीजिए, take a look at this solution. Also try to guess what is the time complexity of the solution. बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन फिर बताता हूँ। पूरे एक के ऊपर लूप करते हैं, एक एक करके नंबर्स उठाते हैं यहाँ से, पिक वन नंबर्स 1 by 1, ठीक है, और उनके कॉरस्पॉन्डिंग स्क्वायर, उनका स्क्वायर, उनका टू द पावर 2 आप ढूंढते हैं बी में। जैसे आपको मिलता था आप बी से उस नंबर को डिलीट कर देते हैं, ठीक है, फिर दोबारा दूसरे नंबर पे चलते हैं, उसका स्क्वायर मिलता है तो उसको भी डिलीट कर देते हैं आप, ठीक है, फिर इसका स्क्वायर मिलता है, इसको भी डिलीट कर देते हैं आप, इसका स्क्वायर मिलता है, इसको भी डिलीट कर देते हैं, एंड देन ऑब्वियसली मतलब एट द एंड यू विल चेक कि भाई b डॉट लेंथ इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, इट शुड बी 0, इफ ओनली इफ इट इज 0 मतलब सारे नंबर्स डिलीट हो चुके हैं, देन यू विल रिटर्न ट्रू। मतलब थोड़ा बहुत है इंटीग्रिटीज हैं जो मैंने अभी के लिए ओमिट कर दी, बिकॉज़ दिस इज नॉट द मोस्ट, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन दैट वी वांट टू अराइव टू, ठीक है, बट ठीक है अभी के लिए छोड़ते हैं इसको, ठीक है। I hope मतलब this is clear to everyone, ठीक है, and if you take a look at the time complexity for this ना, you will be able to figure out कि इसका time complexity जो है क्या है। एक बार सोचो जरा इसका time complexity क्या है। तो अगर आप देखोगे ना तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर n स्क्वायर। n स्क्वायर क्यों है? तो इट इज वेरी सिंपल, इट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि भाई एक लूप आप पूरा पहले ए पे लूप कर रहे हो, एक एलिमेंट को उठाया आपने, एक पे लूप करा corresponding to every element, then you are checking entire b for its square। अब अब फिर पूरे पूरे b पे आप स्क्वायर, आप जो है पूरे पूरे b पे फॉर यू आर चेकिंग फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, ठीक है, यानी 2 का स्क्वायर आपने ढूंढना चालू किया तो पूरे आपने रन करा इसको, ठीक है, लकीली हमें यहीं पे मिल जा रहा है, बट दिस कुड हैव बीन लाइक दिस आल्सो, ठीक है, भाई अपने को लास्ट में मिलता है 2 का स्क्वायर। So you are scanning the entire array for each element, ठीक है, अगर ये 4 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे तो 4 एलिमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग आप इन चारों को स्कैन करते हैं। अगर यहाँ पे 1000 एलिमेंट्स होते हैं तो फॉर एवरी एलिमेंट यू विल स्कैन 1000 अदर एलिमेंट्स। तो अगर यहाँ पे ऊपर ए में अगर 1000 एलिमेंट होते हैं तो फॉर एवरी एलिमेंट यू वुड बी, मतलब ए के हर एलिमेंट के लिए आप बी के सारे 1000 एलिमेंट्स पे स्कैन करते हैं पहले। So the time complexity would be 1000 into 1000। अगर n elements होते हैं A में, what you would do is कि for every element in A you would be scanning all the n elements on B। तो इसकी time complexity n square आ रही है, order n square, ठीक है, which is not a good time complexity। So how do we, the question arises कि how do we improve the time complexity? कैसे improve करें time complexity को, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। So it is fairly simple, ठीक है, and I'll talk about that, ठीक है। इसकी भाई
this is where a pattern called as frequency counting pattern comes into picture. Okay. And this is a pattern, yeah, this is a method which is very commonly used and probably the most important method for your DS algo and for your interviews also. ठीक है, pattern बोल लेते हैं, method बोल लेते हैं, method typically used with strings as well as arrays. ठीक है, अब क्या करेंगे, what you would do is you would start creating, you would run a loop over, you would run a loop over this array A. आप array A के ऊपर एक loop रन करेंगे. ठीक है, कैसे, ऐसे रन करेंगे, देखिए, for जैसे for कर लेते हैं, A and B को यहाँ कॉपी कर लेते हैं. अच्छा, इसके पहले मैं एक चीज कवर करना चाहूंगी भाई, कुछ लोग बोलेंगे कि फॉर ईच एलिमेंट ए इसको लूप ही कर रहे हैं. ठीक है, आप बी में ढूंढ रहे हो तो इसकी जगह पे बी में इंडेक्स ऑफ ढूंढ लो ना, इंडेक्स ऑफ ढूंढ लो, 2 स्क्वायर का इंडेक्स ऑफ ढूंढ लो. 2 स्क्वायर का इंडेक्स ऑफ क्या होता है, 4 होता है. तो बट मतलब इंडेक्स ऑफ की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यू नो कि भाई मतलब ऑर्डर एन ही है. ठीक, ऑर्डर एन ही है, तो भाई मतलब ओवरऑल एन इंटू एन ही होती है. ठीक है, but regardless, let's come back again. I want to talk about frequency counting method here. ठीक है, I don't want to go into time complexity of index of ये वो सारी चीजें. I hope you are understanding कि भाई यहाँ पे लूप के अंदर लूप चलाया तो n स्क्वायर होगा. Now we are coming in, ठीक है, and we are saying कि भाई for I in A. ठीक है, आपने A के ऊपर लूप करा. ठीक है, and what you do is कि you start creating an object. You start creating an object. किस टाइप का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट विद इस टाइप का आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना है. आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है. ठीक है, आई वांट टू आइडियली क्रिएट obja, क्या होता है, let's say I want to create obja is equal to, I want to create an object something like this. Okay, 2 कितनी बार अपीयर कर रहा है ए के अंदर, 2 2 बार अपीयर कर रहा है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, काउंट कर रहा हूं मैं. ठीक है, 4 कितनी बार अपीयर कर रहा है, 4 कितनी बार अपीयर कर रहा है ए के अंदर, एक बार कर रहा है. 6 कितनी बार अपीयर कर रहा है ए के अंदर, ये आपने काउंट करना, ये मुझे क्रिएट करना है. आई वांट टू क्रिएट अ काउंट ऑफ एवरी नंबर दैट इज अपीयरिंग इन दैट एरे, कितनी बार अपीयर कर रहा है उसके साथ काउंट क्रिएट कर रहा हूं. 10 मिनट्स ये करना है हमने को. ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई वांट टू क्रिएट राइट नाउ. ठीक है, एंड वी विल ट्राई एंड क्रिएट दिस एज ऑफ नाउ. ठीक है, हम अभी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे इसको. जस्ट अ सेकंड. ठीक है, you can see my screen थोड़ा साइड हो गया मेरे screen. ठीक है, हाँ. सो वेर वी आर सेइंग कि भाई हम इसको क्रिएट करने की कोशिश करेंगे अभी. ठीक है, तो लेट्स ट्राई एंड क्रिएट दिस. कैसे करें, तो हमने बोला कि भाई लूप कर लेते हैं, एक बार पहले लूप कर लेते हैं इसके ऊपर, इस पूरे एरे के ऊपर ए के ऊपर लूप कर लेते हैं एंड विल स्टार्ट क्रिएटिंग. भाई इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट बनाना चालू कर देंगे. व्हाट वी विल डू इज की ऑब्जेक्ट ए जिसका की कौन सा उठा लें, आई ही उठा लेते, ए का ith एलिमेंट उठा लेते हैं, ये की बना देते हैं इसको. मैंने क्या करा कि मुझे की 2 रखना था, तो मैंने बोला कि 0th एलिमेंट पे कौन सी की पड़ी हुई है, ए 0 पे जो भी की पड़ी हुई है उसको की बना लिया ऑब्जेक्ट ए का. ठीक,
वो स्मॉल था, एंड आई विल से कि भाई दिस इज इक्वल टू जो भी है, मतलब वट एवर इट वॉज, अगर जीरो था तो वन कर लिया, वन, और अगर जीरो था तो एल्स, मतलब वन ही कर लेते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है, या जो भी है ये प्लस इक्वल टू वन कर लेते हैं, ठीक, विल ऐड वन टू दिस की, ठीक है, ऑब्जेक्ट ए के, ए में जो टू की एंट्री है तो उसमें हमने एक जोड़ दिया, ठीक है। ना ऐसे ऐसे करके हमने पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर लूप करा, एंड ये बन के आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, इस सॉरी पूरे एरे के ऊपर लूप करा और ये बन के हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। इट विल से कि भाई टू पहले टू अपीयर्स वंस, तो काउंटर रखेगा उसको वन, फिर फोर अपीयर्स वंस तो उसका काउंटर वन बनाएगा, फिर टू अपीयर्स अगेन तो टू का काउंटर वन प्लस वन टू कर देगा, सिक्स अपीयर वंस तो अपीयर्स वंस तो उसका काउंटर वन कर देगा। दिस इज व्हाट इट विल डू, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्रिक लगेगा कि भाई पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि दिस एग्जिस्ट्स और नॉट, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा ट्रिक नहीं है, बट मैंने अभी स्किप कर दिया, ठीक है, सो आई डू नॉट वांट टू कंफ्यूज यू इन, इन मतलब चेक, इसमें जीरो चेक करना पड़ेगा कि भाई हो सकता है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो वो मतलब वी विल सी लेटर ऑन व्हेन वी स्टार्ट सीइंग द प्रॉपर प्रोग्राम, ठीक है। सो आपने ए के ऊपर लूप करके ऐसे ये बना लिया, ठीक है, ऐसा एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल लूप ओवर बी, सिमिलरली वी विल लूप ओवर बी, सिमिलरली वी विल लूप ओवर बी, पर आई इन बी, और हम ऑब्जेक्ट बी का बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो वी विल डू अ थिंग कि हम भी इसके भी हर एलिमेंट का एंट्री बना देंगे, ठीक है। इन व्हाट वी विल डू इज कि हम ऐसा भी एक ऑब्जेक्ट बना देंगे, ऑब्जेक्ट बी इज इक्वल टू, बी इज इक्वल टू, यहाँ पे फोर कितनी बार अपीयर हुआ, तो फोर, सॉरी 16 कितनी बार अपीयर हुआ, सबसे पहले 16 आएगा, 16 कितनी बार अपीयर हुआ, तो एक बार अपीयर हुआ है, 16 हैज अपीयर्ड वंस, ठीक है। 36 कितनी बार अपीयर हुआ है, तो 36 भी एक ही बार अपीयर हुआ है, ठीक है। फोर कितनी बार अपीयर हुआ है, तो फोर का भी काउंटर मेंटेन कर लेंगे, ठीक। एंड देन व्हाट यू विल डू इसकी, भाई कोड बड़ा लग रहा है लेकिन रन करना है बहुत सिंपल है, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ फॉन्ट, सो दैट सेम ही पेज पे आ जाए, एक सेकंड, फॉन्ट छोटा करने के लिए इसको नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। व्हाट वी विल डू इज कि भाई वी विल लूप ओवर दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लूप करेंगे, एंड विल से लेट फॉर एवरी की इन ऑब्जेक्ट ए, ठीक। व्हाट यू विल डू इज कि वी विल नहीं सॉरी, for keys in object A, what we will do is we will check the value, we will check if object A key, uh, sorry, whether key into key स्क्वायर कर लिया हमने, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट बी में क्या ये की एग्जिस्ट करता है, क्या इसका स्क्वायर का की एग्जिस्ट करता है, यानी अगर टू पे आए तो फिर हम चेक करेंगे भाई ऑब्जेक्ट बी के अंदर क्या इसके स्क्वायर का की यानी 2 into 2 4 एग्जिस्ट करता है क्या, तो एग्जिस्ट करता है, और उसकी वैल्यू क्या, पहले एग्जिस्टेंस के लिए चेक करेंगे, एंड देन मैं एक ही लाइन में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली जब आप कोड लिख रहे हैं तो अलग से चेक करना पड़ेगा क्या उसकी वैल्यू यानी 4 की वैल्यू, और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ए में जो की है इसकी वैल्यू सेम है कि नहीं, यानी 4 अगर एग्जिस्ट करता है कि नहीं पहले चेक करेंगे, और 4 ऑब्जेक्ट बी में 4 की वैल्यू जो है यानी 2, क्या ऑब्जेक्ट ए में 2 के वैल्यू के सेम है कि नहीं, अगर सेम है तो ऑल गुड, ठीक है। अगर नॉट सेम है देन वी विल डायरेक्टली रिटर्न फॉल्स, ठीक है। हम सीधा सीधा फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है, अगर नहीं सेम हुआ तो, ठीक है। इफ नॉट सेम देन वी विल रिटर्न फॉल्स, ठीक है। एंड अगर कभी भी रिटर्न फॉल्स नहीं हुआ तो वी विल चेक कि भाई ऑब्जेक्ट मतलब हम दोनों एरर्स का लेंथ चेक कर लेंगे, भाई ए में सेम एलिमेंट्स है, बी में सेम एलिमेंट्स है, एंड वो चेक करके हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, मैंने बहुत सारी चीजें, बहुत सारा कोड इसमें स्किप कर दिया है, बहुत सिंपली दिखाने की कोशिश करी, बट आई बिलीव फिर भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, ठीक है। तो एक बार देखिए जरा मैंने क्या करा है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको, ठीक है, एंड देन यू विल बी एबल टू I'll explain this again, ठीक है। व्हाट आई हैव डन इज कि मैंने ए पे
ए पे एक काउंटर लगाया, ठीक है। आई स्टार्टेड टेकिंग ईच एलिमेंट फ्रॉम ए। मैंने एक पहले दो एलिमेंट मैं इसको 2 की जगह 3 कर देता हूँ, ठीक है। काफी कंफ्यूजन हो रहा है इससे। 9 9 ठीक है। मैंने क्या करा कि एक एक करके यहाँ से एलिमेंट्स उठाए। तो यहाँ से एलिमेंट उठाया 3, फिर चेक करा कि 3 कितनी बार यहाँ पे अपेयर करता है, 2 बार अपेयर करता है। 4 कितनी बार अपेयर करता है, 1 बार अपेयर करता है। 6 कितनी बार अपेयर करता है, 1 बार अपेयर करता है। यानी मैंने फ्रीक्वेंसी काउंट करी है। फ्रीक्वेंसी काउंटिंग मेथड में मैंने क्या करा, मैंने हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी काउंट करके एक ऑब्जेक्ट बना लिया है, ऑब्जेक्ट ए, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी काउंट करके ऑब्जेक्ट बी बना लिया। फिर हमने चेक करा कि भाई इस एलिमेंट की जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 थी, क्या इसके स्क्वायर की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 2 है क्या? तो 3 जो एलिमेंट है इसका स्क्वायर है 9, और हमने देखा कि दोनों की फ्रीक्वेंसी 2 ही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर हम चेक करें इस एलिमेंट की जिसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 1 है, क्या उसके स्क्वायर की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे भी 1 है क्या? बिल्कुल 1 है। 6 एलिमेंट जो है इसके स्क्वायर की फ्रीक्वेंसी भी क्या 1 है क्या? बिल्कुल 1 है, ठीक। ये हमने चेक करा, अगर सब सही चीज मिल गई हमने ट्रू रिटर्न कर दिया। दिस इज व्हाट इज फ्रीक्वेंसी काउंटिंग पैटर्न, ठीक। ये फ्रीक्वेंसी काउंटिंग पैटर्न है। टेक अ लुक एट दिस and spend next 30 seconds trying to understand it, and if you मतलब I'll explain this all over again एक बार और, ठीक। एक बार इसको समझने की कोशिश करिए। नाउ आई थिंक मतलब आई थिंक दिस शुड बी क्लियर, ठीक है। कुछ ज्यादा कुछ हमने इसमें ऐसा कुछ करा नहीं है जो कि बहुत कंफ्यूजिंग हो। काफी सिंपल सा ही है। एक बार मैं लाइक आई टोल्ड यू कि एक बार मैं फिर समझा देता हूँ, ठीक है। भाई हमने करा क्या कि हमने ए के सारे एलिमेंट्स निकाले एक एक करके, ठीक है, और उन सबके काउंट बना लिए। फ्रीक्वेंसी काउंटिंग मेथड इसे बोलते हैं। उनकी फ्रीक्वेंसीज निकाल ली। भाई ए में एलिमेंट 3 कितनी बार अपेयर कर रहा है? 2 बार अपेयर कर रहा है। ए में एलिमेंट 4 कितनी बार अपेयर कर रहा है? एक बार अपेयर कर रहा है। 6 कितनी बार अपेयर कर रहा है? एक बार अपेयर कर रहा है। सिमिलरली बी में हमने सारे एलिमेंट्स निकाले, उनकी फ्रीक्वेंसी निकाली, ठीक है। कैसे करा है? ऐसे करा है, फॉर आई इन ए, ठीक है, ऑब्जेक्ट ए के अंदर हमने ए के 0th प्लेस पे जो एलिमेंट है, यानी 3 है यहाँ पे, ठीक है,
उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसका काउंट 1 से बढ़ा दिया, तो 0 था तो 1 का हो गया, 3 की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। फिर हमने ऑब्जेक्ट ए में एक एंट्री बनाई है 4 की, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 से बढ़ा दी तो 1 हो गया। फिर 3 की फ्रीक्वेंसी 1 से बढ़ा दी, और तो 3 की फ्रीक्वेंसी पहले से 1 थी, अब 2 हो गई। फिर 6 की फ्रीक्वेंसी 1 से बढ़ा दी, 0 थी तो 1 हो गई। अब यहाँ पे हमने 0 का चेक नहीं लगाया, मैंने बोला था कुछ कोड मैंने जानबूझ के डिलिबरेटली इग्नोर किया है टू मेक इट सिंपल, लुक सिंपल, ठीक है। सिमिलरली हमने बी का भी मैप बना लिया है, ठीक है, या फिर फ्रीक्वेंसी काउंटर बना लिया, ठीक है। अब फिर हमने चेक करा कि भाई ये दोनों ऑब्जेक्ट्स जब बन गए तो हमने चेक करा कि एक एक करके इस ऑब्जेक्ट की सारी कीज चेक करी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसके स्क्वायर की इसमें चेक करा, यानी इसका पहला की है 3, तो हमने चेक करा बी में 3 का स्क्वायर, यानी बी में 3 का स्क्वायर यानी 9, ऑब्जेक्ट बी में 3 इंटू 3 9, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, क्या इसका फ्रीक्वेंसी 2 जो है ऑब्जेक्ट ए में 3 की फ्रीक्वेंसी से मैच करता है क्या, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी नहीं मैच करता, अगर नहीं मैच करता तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे, फॉल्स रिटर्न कर दिया, प्रोग्राम यहीं पे एंड हो गया, ठीक है। ऐसे ऐसे करके सबका अगर फॉल्स नहीं हुआ तो अगले वाले का चेक होगा, फिर अगले वाले का चेक होगा, फिर अगले वाले का चेक होगा, ठीक है। तीनों का चेक हो गया एंड कोई फॉल्स नहीं रिटर्न हुआ, व्हिच मींस कि भाई तीनों में मैच हुआ है, तो फाइनली हमने ट्रू रिटर्न कर दिया, फेयरली सिंपल, ठीक है। आई बिलीव दिस इज क्लियर टू एवरीवन नाउ, ठीक है। आई विल गिव यू another 10 seconds to think over it, and then we will discuss the time complexity for this. Cool है, आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ टू एवरीवन, ठीक है। अब एक बार ये बात करते हैं कि भाई भाई एक बार बात करते हैं ये की इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। अच्छा, वन मोर थिंग क्विकली गाइस कि भाई कि यहाँ पे एक एक करके हम ऑब्जेक्ट ए पे इटरेट कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट ए की कीज निकाल रहे हैं, ठीक है, और फिर हम ऑब्जेक्ट बी में उस की को ढूंढ रहे हैं जो कि 3 का स्क्वायर है, ठीक है। नाउ टेल मी, तो ये तो इजीली पॉसिबल है, ढूंढना तो बहुत पॉसिबल है, मुझे बताओ कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट में किसी की को लुकअप करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है भाई, कितना टाइम लगता है किसी की में, किसी भी सॉरी ऑब्जेक्ट में किसी की को ढूंढने में क्या टाइम लगता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर 1 होता है, ठीक है। अगर आपको ऑब्जेक्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको ध्यान हो, कराया हुआ है, समझाया हुआ है, एक बार बात करी हुई, डिस्कशन हो रखा है इस पर, ऑर्डर 1 होता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। नाउ एक एक करके आप इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, इस प्रोग्राम की, प्रोग्राम यहाँ से चालू हो रहा है, ठीक है। देखो फॉर लूप है, आई ए पे पूरा रन हो रहा है, तो इस वाले पार्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n हो गई, इस वाले पार्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस पार्ट इज n, ठीक है। इस वाले पार्ट पे भी भाई एक बार लूप रन हो रहा है, तो इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई n, ठीक है। आते हैं इस वाले पार्ट पे, ठीक है, ये वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, ठीक है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट ए के ऊपर रन हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट ए में कितने एंट्रीज आएंगे, उतनी एंट्री मैक्स टू मैक्स उतनी एंट्रीज आ जाएंगी जितनी की भाई आपके ए में कैरेक्टर्स हैं, आपके ये ना, जितने ए में आपके कैरेक्टर्स हैं उतनी एंट्री आ जाएंगी, जितने यूनिक कैरेक्टर्स हैं उतनी एंट्री आ जाएंगी। तो ए में मैक्सिमम कितने यूनिक कैरेक्टर्स हैं, एन ही हो सकते, ठीक है। तो भाई ये लूप तो एन बार चल रहा है, ठीक है। अंदर देखे तो अंदर हो क्या रहा है, अंदर बस एक इक्वालिटी चेक हो रहा है और या इनइक्वालिटी चेक हो रहा है, बट इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट बी बी का एक की हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट बी में कोई भी की एक्सेस कर सकते हैं हम ऑर्डर 1 कॉम्प्लेक्सिटी के साथ, ऑब्जेक्ट बी के अंदर कोई भी की हम एक्सेस कर सकते हैं ऑर्डर 1 कॉम्प्लेक्सिटी के साथ, यस। सिमिलरली ऑब्जेक्ट ए में भी एक की ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट ए में भी कोई भी की हम एक्सेस कर सकते हैं ऑर्डर 1 कॉम्प्लेक्सिटी के साथ, यस, ठीक है। और इन दोनों को चेक करने के लिए सॉरी इन दोनों को चेक करने में, यानी ऑर्डर 1, यहाँ पे ऑर्डर 1 लगेगा आपके कॉम्प्लेक्सिटी, इस चीज को समझिए भाई, यहाँ पे
हाँ, यहाँ पे भी ऑर्डर 1 कॉम्प्लेक्सिटी लग रहा है, यहाँ पे भी ऑर्डर 1 कॉम्प्लेक्सिटी लग रहा है, और इन दोनों को चेक करने के लिए भी ऑर्डर 1 है, ठीक है। तो ऑर्डर 1 को इग्नोर करेंगे, ठीक है, एंड हेंस व्हाट विल बिकम कि भाई बाहर का लूप क्योंकि n टाइम्स चल रहा है, तो इसकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई n, ठीक, इस वाली चीज की, ठीक। यानी पूरे प्रोग्राम की अगर मैं बोलूं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी व्हाट, देखा ये वाला लूप n टाइम्स रन होगा, ये वाला लूप n टाइम्स रन होगा, ये लूप भी n टाइम्स रन होगा, और उसके अंदर जो एक्टिविटी वो ऑर्डर 1 में हो जाती है। तो तीनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर n, ऑर्डर n, ऑर्डर n, ठीक है। यानी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर द प्रोग्राम इज व्हाट, और इज ऑर्डर 3n, इज ऑर्डर 3n, और 3n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें पता है कि 3n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आपका कांस्टेंट इग्नोर हो जाता है, एंड हेंस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर n फॉर द ओवरऑल प्रोग्राम इज ऑर्डर n, ठीक। यानी अब मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ कि भाई चाहे 1 मिलियन कैरेक्टर्स हो इस एरे में, 1 मिलियन नंबर्स एरे में, चाहे 10 मिलियन एरे में नंबर्स हो, चाहे 1 बिलियन नंबर्स हो इस एरे में, हमें फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर n में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। जो कि अगर पहले आप देखेंगे जब हम 2 लूप चला रहे थे तो ऑर्डर n स्क्वायर आ रहा था, यानी हमने अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंप्रूव कर ली, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये फ्रीक्वेंसी काउंटिंग मेथड, ठीक। एक बार देख लीजिए, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ डाउट हो तो यू कैन मतलब ऑलवेज पुट इट इन दी डाउट्स थ्रेड आल्सो, ठीक है। एंड बट हाँ, मतलब दिस इज व्हाट फ्रीक्वेंसी काउंटिंग मेथड इज ऑल अबाउट, ठीक है। फ्रीक्वेंसी काउंटिंग मेथड के सर और भी यूज केसेस हैं क्या? बिल्कुल, बहुत सारे यूज केसेस हैं, ठीक। मैं क्विकली एक और यूज केस दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो फिर आपको शायद समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको चेक करना है भाई दो नंबर्स एनाग्राम्स हैं कि नहीं। एनाग्राम्स क्या होता है? What? मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। What are anagrams? Anagrams, ठीक है। तो एग्जांपल्स, तो एनाग्राम्स ये होते हैं कि भाई कि एक 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 जैसे फॉर एग्जांपल कैट एंड एक्ट आर एनाग्राम्स, ठीक है, कि सेम लेटर्स रीअरेंज हो गए। कैट के CAT लेटर्स जो थे वो रीअरेंज होकर एक्ट बना दिए गए। आर्क एंड कार आर एनाग्राम्स, ठीक है। इंच एंड चिन आर एनाग्राम्स, ठीक है। देखो तो CHIN चिन होता है और इंच होता है। एल्बो एंड बिलो आर एनाग्राम्स, ठीक है। सेव एंड वेस आर एनाग्राम्स। स्टेट एंड टेस्ट आर एनाग्राम्स। नाइट एंड थिंग आर एनाग्राम्स, ठीक है। एनाग्राम्स को कई बार लोग कंफ्यूज कर लेते हैं कि एनाग्राम इज सेम एज उल्टा उल्टा वर्ड को रीड कर लिया, यानी बट दैट इज मतलब दैट इज नॉट एन एनाग्राम, ठीक है। कि भाई फॉर एग्जांपल लोगों को लगता है कि एनाग्राम, मैं कहाँ दिखाऊं आपको, ठीक है। देखोगे तो यहाँ पे एनाग्राम लोगों को लगता है कि भाई केवल यही होता अगर TAC होता और कैट आर एनाग्राम्स, नहीं, बिल्कुल नहीं। ए, फिर C, फिर T, एक्ट, ये भी एनाग्राम्स है, ठीक है। यानी सेम लेटर्स को रीअरेंज कर दिया तो एनाग्राम बन जाता है, ठीक है। आई होप दिस क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। तो भाई एंड सेम लेटर्स होने चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें एक एक्स्ट्रा लेटर हो, इसमें 3 लेटर्स हैं, इसमें 4 लेटर्स हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक। सो एनाग्राम्स के लिए, ठीक है। सो नाउ अगर मैं आपको क्विकली दिखाऊं तो भाई एनाग्राम्स को दो वर्ड्स हैं, एनाग्राम्स होंगे कि नहीं। वर्ड 1 जैसे कुछ है, ठीक है, जैसे नाइट, वर्ड 1 इज नाइट। वर्ड 2 इज वर्ड 2 इज नाइट का एनाग्राम क्या होता है? थिंग, ठीक है। वर्ड 2 इज थिंग, ठीक है। यू हैव टू चेक वेदर दीज टू वर्ड्स आर एनाग्राम्स और नॉट, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन आता है, कोई दो वर्ड्स दिए आपको एनाग्राम्स है कि नहीं, चेक करो। सबसे पहले ऑब्वियसली आप मैच कर लो कि भाई दोनों की लेंथ सेम है कि नहीं। एक 5 डिजिट नंबर है, एक सॉरी एक 5 कैरेक्टर वर्ड है, एक 10 कैरेक्टर वर्ड, तो ऑब्वियसली एनाग्राम्स नहीं हो सकते हो। देन व्हाट यू विल डू इज कि भाई आप एक वर्ड 1 का ऑब्जेक्ट 1 बनाएंगे, ठीक है। स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ आपको। ऑब्जेक्ट 1 बनाएंगे, इसमें आप क्या करेंगे, सारे कैरेक्टर्स लिख लेंगे और उनको कितनी बार अपीयर करते हैं वो लिख लेंगे आप। कितनी बार अपीयर करता है? तो एक बार अपीयर करता है, ठीक है। आई, ओहो, क्या हाँ, आई कितनी बार अपीयर करता है? तो एक बार अपीयर करता है। कुछ तो हो रहा है, ठीक है। अब सॉरी, अब आई एम होपिंग कि अब आपको दिख रहा है।
सॉरी जी कितनी बार अपीयर करता है, 1 टाइम्स अपीयर करता है, एच कितनी बार 1 टाइम्स, एंड टी कितनी बार, तो वो भी 1 टाइम्स अपीयर करता है, ठीक है। तो ये हमने बना लिया। व्हाट वी हैव डन इज कि वी हैव क्रिएटेड अ मैप, ठीक है। हमने एक फ्रीक्वेंसी काउंटर बना लिया कि हर लेटर हर कैरेक्टर उठा लिया, वो कितनी बार अपीयर करता है इस वर्ड में, वो हमने बना लिया, ठीक है। फिर हमने एक ऑब्जेक्ट 2 बनाया जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, हम जो है वर्ड 2 का कैरेक्टर्स का काउंट लेंगे, फ्रीक्वेंसी काउंट लेंगे। टी कितनी बार अपीयर करता है, तो 1 टाइम्स अपीयर करता है। यार ये क्यों हो रहा है, हाँ 1 टाइम्स अपीयर करता है। और एच कितनी टाइम्स अपीयर करता है, 1 टाइम्स अपीयर करता है। और आई कितनी बार अपीयर करता है, तो 1 टाइम्स अपीयर करता है। एन कितनी बार अपीयर करता है, 1 टाइम्स अपीयर करता है। एंड जी कितनी बार अपीयर करता है, वो भी 1 टाइम्स अपीयर करता है। फिर देन यू विल चेक कि भाई एन का जो है, एक और लूप लगा के आप चेक करेंगे कि एन का जो अकरेंस है यहाँ पे, जो फ्रीक्वेंसी है से 1 है, तो यहाँ पे भी क्या एन की फ्रीक्वेंसी 1 है, बिल्कुल है। फिर आई की फ्रीक्वेंसी 1 है, तो यहाँ भी 1 है क्या, बिल्कुल है। फिर जी की फ्रीक्वेंसी यहाँ 1 है, यहाँ भी है क्या, बिल्कुल है। फिर एच की फ्रीक्वेंसी 1 है, यहाँ भी है क्या, बिल्कुल है। टी की फ्रीक्वेंसी 1 है, यहाँ भी है क्या, बिल्कुल है, ठीक। सो ये चेक करेंगे आप, एंड इफ दीज फ्रीक्वेंसीज मैच यू विल से कि भाई इट इज एन एनाग्राम। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स बनते हैं, ठीक है, वी विल कीप सीइंग मोर एंड मोर सच एग्जांपल्स, ठीक है। बट अभी के लिए आई विल पुट दिस एट रेस्ट, ठीक है। दिस इज व्हाट फ्रीक्वेंसी काउंटिंग मैटर पैटर्न इज, फ्रीक्वेंसी काउंट दैट इज, इट इज वेरी कॉमनली यूज्ड इन स्ट्रिंग एंड एरे क्वेश्चंस। आपको इस पैटर्न को एकदम सबसे पहले आप भी कहीं भी स्ट्रिंग एंड एरे का क्वेश्चन देखें तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए डीएसएल को, में कि भाई इसमें क्या फ्रीक्वेंसी काउंटिंग मेथड लगा सकता हूँ क्या मैं। सबसे पहले आप कोशिश करेंगे क्या, इसको हम मैप में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या। मैप मैंने एक वर्ड यूज किया है, ध्यान रखिएगा। इस तरीके की चीज को, यानी इस वर्ड को आपने एक फ्रीक्वेंसी काउंटर में कन्वर्ट कर दिया। इस फ्रीक्वेंसी काउंटर को कई बार लोग हैश और मैप, इन दोनों टर्म से भी यूज करते हैं इनके लिए, ठीक है। कोई बोलते हैं हैश मैप बना लो, इनका मैप बना लो, हैश बना लो, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। क्यों ऐसे यूज करते हैं भाई, ऐसे ही मतलब आपका नाम अगर अभिषेक है तो क्यों है, ठीक है। हाँ एज सिंपल एज दैट, ठीक है। कि भाई मतलब इफ यू आर, इफ अगर आपका नाम शैलेश है तो क्यों है, ठीक है। एज सिंपल एज दैट, ठीक है भाई। कि एक फ्रीक्वेंसी काउंटर आपने बनाया है, इसको किसी ने हैश बोल दिया, किसी ने मैप बोल दिया, किसी ने कुछ नाम देना था, नाम दे दिया लोगों ने, ठीक है। तो आई होप यू विल बी एबल टू, आई होप मतलब दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। एंड आई होप कि यू विल बी एबल टू यूज दिस स्ट्रेटजी गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है। तो दिस इज इट गाइस, आई विल रैप दिस सेशन अप नाउ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी काउंटिंग मेथड है, आई होप यू हैव टेकन नोट्स, मैंने बहुत धीरे धीरे समझाया, आई होप यू हैव टेकन नोट्स आल्सो, ठीक है। एंड this is what it is, ठीक है। we'll see how to code this, ठीक है, in the coming sessions, ठीक है। in the following session इस टाइप की चीजें को कोड कैसे करते हैं, we'll also discuss a little bit of frequency counting method, frequency counting pattern all over again, but हाँ this is what it is, ठीक है, ठीक है guys। So I'm wrapping this up, ठीक है। I hope that this is clear to everyone, ठीक है। and you'll be able to now solve any array and numbers के अराउंड जो भी DSL क्वेश्चन आएंगे which involve frequency counting method कर लेंगे हम, है ना, ठीक है। Did I miss out anything क्या, no, ठीक है, cool है guys। I'll wrap this up then।